কেমন লাগছে? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर कपिल ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग हैं सुंदरवन में और ये हमारा दूसरा दिन है। तो ये कुछ लीड कैरेक्टर्स जो इस एपिसोड में रहने वाले हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। ये हिरन, ये बंदर महाशय जो इस लीड कैरेक्टर में रहेंगे, और साइड कैरेक्टर में हम लोग रहेंगे अर्नब, किशोर यानी कि मैं, मिसेस पायल मेरी वाइफ, मिस प्राची पायल की बहन, और मिसेस डोना जो अर्नब की वाइफ है। तो सुबह सुबह हम लोग पाखिरालय में जो हम लोग का स्टे था, सेकेंड डे का, फर्स्ट डे का स्टे, फर्स्ट नाइट स्टे करके हम लोग सेकेंड डे पाखिरालय फेरी घाट के लिए निकल गए। तो आप लोग ये कुछ घर देख सकते हैं किस तरीके का रहता है वहाँ पे, आदमी कैसे रहते हैं। और ये हम लोग पाखिरालय फेरी घाट पहुँच गए और वहाँ से हम लोग का हाउस बोट में पिकअप था। तो लास्ट डे के कंपेरिजन में आज वेदर काफ़ी सूदिंग था, थोड़ी सी गर्मी थी, बट फिर भी लास्ट डे कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग कुछ ही देर में हाउस बोट में चढ़ गए और हाउस बोट में चढ़ के थोड़ा वेट किए, और वेट करने के बाद ही हम लोग का जो गाइड है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। একটা ওয়াচ টাওয়ার যে সুন্দরবন নাম হয়েছে সেই সুন্দরী গাছের নাম অনুসারে যে সুন্দরবনটার নাম হয়েছে সেই সুন্দরী গাছ আছে। তো আমরা এই স্পটটার মধ্যে যদি সময় কাটাতে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো যে এখানে বেশি সময় না দিয়ে আমরা জঙ্গলে বেশিটা সময় দিই। তো এইখানে সবাই চেষ্টা করবেন একটু তাড়াতাড়ি করার, তাহলে আমরা জঙ্গলে যেতে পারবো। জঙ্গলের মধ্যে যতটা আমরা সময় কাটাতে পারবো কোনো কিছু হতেই পারে সম্ভাবনা। কারণ স্পটগুলোর মধ্যে কিছু হবে না, স্পটগুলোর মধ্যে ভিড় আছে, মানুষের আওয়াজের মধ্যে কোনো জন্তু যেন আশপাশে আসবে না। আমরা যদি জঙ্গলের মধ্যে বেশিক্ষণ ট্রাভেল করি তাহলে আমরা কিছু দেখার সম্ভাবনা হতে পারে। প্রত্যেকে গ্রুপ ওয়াইজ চলতে হবে। बोट के भैया ने बताया कि हम लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जंगल में, जो सुंदरवन का जंगल है जहाँ घुमाया जाएगा। सौजने खाली में या फिर अदर जहाँ पे ब्रिज टावर है वहाँ कम टाइम स्पेंड करने से वहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलेगा और उसमें बाघ देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ अच्छा समझा, क्योंकि अच्छा लगा भी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा हम लोग को सुझाव दिया। तो उसके बाद हम लोग सोजने खाली पहुँच गए और सोजने खाली में बहुत सारे भीड़ थे और ऑफिशियली सबको एक एक गाइड दिया जा रहा था। वहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे, आप लोग देख सकते हैं। तो चारों तरफ पेड़ थे। एक्चुअली सुंदरवन में चारों तरफ पेड़ ही हैं और बंदर आपको कॉमनली दिख ही जाएंगे। और वहाँ पे टॉर्टराइज का ब्रीडिंग होता है। हम लोगों ने ये देखा, कुछ अंडे पड़े हुए थे, शायद पुराने अंडे होंगे। उसके बाद हम लोग को ऑफिशियल गाइड दिया गया एक। তো আমার নাম হচ্ছে প্রলয় রপ্তান, ঠিক আছে। একজন সুন্দরবন রেজিস্টার্ড ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে আপনাদের সাথে আজকে সারাদিনই আছি। এখান থেকে আমাদের এই স্পটটা থেকে সুন্দরবন জঙ্গল সাফারিটা প্রপার শুরু হচ্ছে। এখান থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নামছি, তো সেই পর্যন্ত আমি আপনাদের সাথে মানে জঙ্গলে যা কিছু দেখানো সম্ভব। এই যে গ্যাদারিংটা দেখছি, এই স্পটটা ছাড়া এখনো পর্যন্ত আমরা দুটো স্পটে উঠবো। প্রত্যেকটা স্পটে প্রচুর গ্যাদারিং দেখবো, ঠিক আছে। তো সেই কারণে আমাদের এই গ্রুপটার কথা বা গ্রুপটার নামটা কিন্তু সবাই মাথায় রাখবেন, আর বাচ্চাদেরকে একটু সামনে রাখবেন। তার কারণ তো সেখানে বোট থেকেই কিন্তু আমাদের সাফারিটা হবে। কোথাও কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে নেমে আমরা কিন্তু হেঁটে বা গাড়ি সাফারি কিছুই করছি না। তো এই বোট থেকে দুটো সাইডে আমাদের ওপেন সুন্দরবন জঙ্গল পড়বে, যেখানে ওপেন জঙ্গল পড়লেও মাত্র 10 থেকে 15 ফিটের বেশি কিন্তু আমরা জঙ্গলের মধ্যে আর কিছুই দেখতে পাবো না। যতই সূর্য, এই ওয়াচ টাওয়ারটার হাইটটা সব থেকে বেশি, 30 থেকে 35 ফিটের একটা ওয়াচ টাওয়ারে উঠবো, যেখান থেকে আলাদা বা এক্সট্রা কোনো এক্সপেকটেশন রাখবেন না যে আমরা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে প্রচুর কিছু দেখে নেব। তার কারণ এখান থেকে একটা গ্যাদারিং তো হচ্ছে, সাউন্ড তো হচ্ছে। সেই সাউন্ডটা একটা তো মিষ্টি জলের পুকুর দেখবো, যদি কোনো কিছু আসে তো দেখতে পাবো। ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যেতে গিয়ে বাঁ সাইডে আপনি যে কুমিরটার যেটা বলছেন, বাঁ সাইডে একটা কুমির পুকুর দেখবেন, যেখানে ডিপার্টমেন্ট থেকে 3টে কুমির রিজার্ভ করা আছে এবং তার সাথে গোলপাতা গাছ দেখতে পাবো। এখান থেকে আমরা এক্সিট গেটের দিকে যেতে গিয়ে সুন্দরী গাছ দেখবো এবং ডিটেলস একটা সুন্দরবন ম্যাপ দেখবো। যদি আপনারা জানতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তো ডিটেলসে করুন। তো আজকের জার্নি এখান থেকেই মোটামুটি শুরু হচ্ছে। থ্যাংক ইউ এত সুন্দরভাবে শোনার জন্য।
रजिस्टर्ड गाइड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी वॉच टावर के बारे में बताया और कुछ चीज़ें भी क्लियर की कि हम लोग का ग्रुप का नाम इवाना ग्रुप रहेगा और हम लोग को एक साथ रखना है। और ये एक ब्रीडिंग सेंटर था जहाँ पे हम लोगों ने देखा, और भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में वो दे रहे थे। অনেকেরই মনে হচ্ছে লম্বা পাতা কিন্তু গোল পাতা কেন? ওই যে ফলগুলো দেখুন, ফলগুলো গোলাকৃতির কারণেই এই গাছটার নামকরণটা হয়েছে গোলপাতা। এটার আরো প্রচুর ব্যবহার আছে যেটা ঘরে। तो ये वही कुमुड़ पकड़ है जहाँ पे वो गाइड भैया ने बताया था कि यहाँ पे 3 मगरमच्छ छोड़े गए हैं और ये 3 मगरमच्छ कभी कभी दिख जाते हैं। फिर गए हम लोग 30 से 35 फुट ऊंचा जो वॉच टावर है वहाँ से, और वहाँ पे व्यू कुछ ऐसा था। आप लोग ये मिष्टी पुकुर देख सकते हैं। ये मिष्टी पुकुर वही गाइड भैया ने बताया था कि यहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं क्योंकि यहाँ का पानी मीठा है। तो हम लोग भी कुछ ऐसा वेदर का मज़ा लिए और वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि चारों तरफ पेड़ दिख रहे थे और हरियाली थी और पानी था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम लोग को जाना था सुंदरवन के मैप देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को समझना था कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमते। ये हम लोग को एक बोर्ड दिखा जो बताता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है उस सुंदरवन, और ऑब्वियस है काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को ये देख के। और उसके बाद अचानक से हम लोग सबको मगरमच्छ दिख गया उसी पुकुर में, जिसे कुमीर पुकुर बोला जाता है। आप लोग ये देख सकते हैं जो मार्क किए हैं वहाँ पे। तो काफ़ी सबको अच्छा लगा कि चलो कोई तो अच्छा चीज़ दिखा। एक्साइटेड हुए हम लोग कि हम लोग को इस बार तो बाघ दिख जाएगा। तो फिर हम लोगों ने पेड़ देखा सुंदरी, और ये सुंदरी पेड़ के नाम पे ही सुंदरवन नाम पड़ा है इस जगह का। तो ये पेड़ बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे एक सैंपल रखा गया है। মেন রুট ধরে আবার পঞ্চমুখী হয়ে এই মেন রুট ধরে আমরা আবার এই পাখিরালয়তে যাব। সজনেখালির অপোজিট পার পাখিরালয়, ওখানে যাচ্ছে। আর এই জোনটা হচ্ছে বাফার জোন, মাছ কাঁকড়া মধু সংগ্রহ করার জন্য। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই জোনটা সবথেকে বড় কোর এরিয়া, যেখানে আমাদের মতো সাধারণ লোকজন টুরিস্ট বা যতই ভিআইপি হোক কারোরই যাওয়ার কোনো পারমিশন নেই। শুধুমাত্র একটাই টুরিস্ট স্পট আছে যেখানে আমরা যেতে পারি, সেটা হচ্ছে নেতি ধোপান স্পটটা। পার ডে মাত্র 10টা থেকে 15টা করে বোটের পারমিশন দেওয়া হয় সেখানে যাওয়ার জন্য। তো এই हम लोग का इवाना हाउस बोट आ चुका था। अच्छे से मैप समझने के बाद ये पता चला कि हम लोग को बहुत कम चांस है कि हम लोग बाघ देख पाएंगे, क्योंकि नेदी धपानी जगह जो है जहाँ पे बाघ मोस्टली दिखता है उसमें सिर्फ 10-15 बोट ही अलाउड रहते हैं। और हम लोग को बोट के चढ़ने के बाद ही हम लोग को नाश्ता दिया गया जिसमें था कचौड़ी एंड साथ में चना मसाला। तो हम लोग फिर उतरे नीचे और हाउस बोट में थोड़ा इन्जॉय किए, क्योंकि हाउस बोट में नीचे हाउस है और इस तरह के अवेलेबल बाथरूम्स भी हैं जो बहुत ही क्लीन थे। और आप ऐसे बैठ के और सो के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको चारों तरफ पानी दिखेगा और ये इस तरह का व्यू दिखेगा, चारों तरफ जंगल दिखेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग किचन में गए और किचन में सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था लंच का। उसमें आमूद माचर पकौड़ा था जो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, क्योंकि ये हम लोग को अभी थोड़ा देर में मिलने वाला था। साथ में इलिस पाथुड़ी जिसका प्रिपरेशन चल रहा था, और इधर था चिंगड़ी का फ्राई करके रखा हुआ था। चिंगड़ी मलाई कड़ी बनने वाला था, हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो ठीक ठाक ही लग रहा था किचन, कोई उस तरह का गंदा ऐसे हम लोग को समझ में नहीं आया। बट इस बोट में बहुत ही कम स्पेस है, ऑब्वियस है, फिर भी इतनी साफ़ सफाई मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। सोचिए आप इस हाउस बोट में इस तरह का व्यू का लेते हुए आप ट्रैवल कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता होगा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, और वो था सुधानगर खाली। और ये जगह था जहाँ पे बहुत सारे पेड़, वैरायटी के पेड़ लगे हुए थे, और आप सुंदरवन में क्या क्या पेड़ मिलता है वो देख सकते थे। तो देखिए बहुत सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। সুন্দরী আমরা আছি সুন্দরবনেই। हम लोग অ্যাডাল্ট হয়নি এখনো, যখন বড় হয়ে যাবে বা অ্যাডাল্ট বা ম্যাচিওর হয়ে যাবে তখন এর পাতার কালার বাঘের গায়ের কালারের সাথে পুরোপুরি ম্যাচ করে যাবে। তো সেই কারণে ও আরামসে লুকিয়ে থাকতে পারে, এবং যতই সূর্যের আলো পড়ুক গাছটা এতটাই ঘন যে নিচটা পুরো কালো অন্ধকার হয়ে থাকে, এবং বাঘ লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তো এই হচ্ছে বাঘের ঘর বা আস্তানা ধরতে পারি, যার নাম হচ্ছে হেতাল। तो गाइड भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये हेताल जो पेड़ है इसका कलर और इसका जो टेक्सचर है वो बाघ के साथ मैच करता है, जिसकी वजह से बाघ इसके अंदर छुपे रहते हैं और अटैक करते हैं, शिकार करते हैं।
तो इतने सारे हम लोग को पेड़, वैरायटी के पेड़ देखे, और उसके बाद हम लोग को ये बताया गया कि ये सारे पेड़ औषधि के लिए यूज़ होते हैं। এই কষ্টে সুন্দরবন ঘোরা ছাড়া মানে খুব বেশি কিছু আর ইয়ে নেই। তো এবারে কি হচ্ছে, এই একরকম গেস্ট আসে, আর এক রকম গেস্ট আসে কি শুধু বোটিং করতে কিন্তু ঘুরতে, আর এক রকম গেস্ট আসে কি শুধু ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে। না ফটোগ্রাফার সেটা আলাদা বিষয়। वाइल्ड लाइफ মানে খালি जानवर देखते हैं। বার্ডিংটা বেশি করে। अच्छा, गाड़ी भैया बोल रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे कि हम लोग बाघ दिखेगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि बहुत कम चांस है, क्योंकि इस तरह से बोट से घूमने से आवाज़ होता है जिसकी वजह से बाघ नज़दीक नहीं आते हैं। मोस्टली जो बाघ देखने आते हैं और इस तरह के पसंद करते हैं बाघ देखना, वो लोग जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो हैं। দেখতে পাচ্ছেন। तो हम लोग को उम्मीद तो कम हो गई थी ये सारी बातें सुन के, और तब तक हम लोग का अमूल मच्छर पकौड़ा आ गया था, जो काफ़ी टेस्टी लगा हम लोग खाने में, काफ़ी सॉफ्ट था। तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि कोई कोई यहाँ पे खाने और इन्जॉय करने आते हैं। और এটা থেকে আমরা রিটার্ন করব। আচ্ছা, আপনাদের ডান সাইডে মানে আপনাদের পেছন সাইডে এই সাইডটা, ডান সাইডে যে একটা নদীর মুখ ঢুকে যাচ্ছে দেখুন, ওটা হচ্ছে হেড়ো ভাঙা নদীর মুখ, যেটা থেকে নামখানা, কাকদ্বীপ, বকখালি, ডায়মন্ড হারবার সব এই একটাই থেকে যাচ্ছে। আর আমাদের বোটের মাথার সোজাসুজি যে সব থেকে বড় নদীর মুখ, ওইটা হচ্ছে বিদ্যাধরী নদীর মুখ, যেটা থেকে বঙ্গোপসাগর যাচ্ছে, এবং এখান থেকে মিনিমাম 8 থেকে 8.5 ঘন্টা জার্নি। বিদ্যাধরীতে ঢুকে ডান সাইডে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে মাতলা নদীর মুখ পড়ে। এই হচ্ছে तो पंचमुखी जो संगम था उसे हम लोगों ने देखा, जहाँ पे 5 रिवर मीट करते हैं। वो 5 रिवर का नाम तो हमको याद नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लगा वो देख के। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए दोबांकी कैंप, और दोबांकी कैंप में एक ओवर ब्रिज था, ओवर ब्रिज बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही पतला ओवर ब्रिज, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर से गया था, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, क्योंकि नीचे बहुत सारे पेड़ थे, पानी था, और उसके ऊपर से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग को केकड़े भी देखने को मिले, जो लाल केकड़े रहते हैं वो अंदर अंदर बहुत सारे होल बने हुए थे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीला था, उसके अंदर घुसे हुए थे। कभी कौन है खंडों का बाघ नहीं दिखा अभी तक, तुमको बाघ नहीं दिखा? हरिण दिख गया। हरिण दिख गया? हिरन? दिख गया। ও হিরণ দিক গিয়া? হ্যাঁ, কোথায় দেখেছিলেন? ওই যে বোটের মধ্যেই? কি হলো, মাগে গেছে। फ्रेश वाटर इंश्योरेंस जैसे ही वो ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस किया, तो हम लोग को दिखा एक हिरन, एक नहीं 2 हिरन, जो आसपास में बैठे हुए थे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तभी तक हम लोग को एक पास में हिरन दिख गया, जो काफ़ी नज़दीक था। हम लोग को सब बहुत एक्साइटेड हो गए देखने के लिए, और एकदम पास में था, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा देख के। इतना पास से एक हिरन देखना बहुत बार नसीब में नहीं होता है। इतने पास से हिरन देखने के बाद और उसको कैप्चर करने के बाद हम लोग निकल गए अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और जाते जाते जब बोट में हम लोग चढ़ रहे थे, तो इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी, बहुत ज़ोर से, तो सब स्पीड में चढ़ने लगे। बट ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोट बहुत हिलती है और आप लोग गिर सकते हैं। हम लोग भी गिर सकते थे, बट किसी तरह बोट में चढ़ गए। और इतनी बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं, सब छाता लेके चढ़ रहे थे बहुत स्पीड में। और साथ में एक आदमी जो है वहाँ लगातार झगड़ा कर रहा था। ये देखिए, ये नॉर्मल था, हम लोग को बहुत जगह मिला कि ये बोट एक दूसरे से टकराते हैं और उसके बाद सब कोई झगड़ा करते हैं। और ये देखिए बगुला एक हम लोग को दिखा, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम लोग को लंच मिल गया, और लंच में था काफ़ी टेस्टी खाना। और सबसे पहले आया चावल और दाल, और उसके साथ आलू झुरी भाजा। उसके बाद हम लोग को दिया गया इलिस माथा दिए कोचूस साग, जो काफ़ी टेस्टी था, और अर्नब को स्पेशली बहुत पसंद आया, पायल को भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद आ गया हम लोग का प्रॉन मलाई करी,
सबको 2-2 पीस दिया जा रहा था जो कि फिक्स था। अर्नब ने सोचा कि 1-2 पीस और डील कर लिया जाए, बट उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद बारिश होने लगी। आप सोचिए कितना मज़ा आएगा यहाँ पे खाना खाते हुए, कितना आनंद लगता हुआ। बारिश हो रही है, इधर खाना और इस तरह का खाना, मतलब प्रॉन मलाई करी, फिर पातुड़ी, इस तरह का। तो इतना टेस्टी खाने के साथ इतना अच्छा वेदर, आप लोग ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं अगर आप सुंदरवन जाते हैं तो। उसके बाद इतना ज़ोर ज़ोर से बोट हिलने लगा धीरे धीरे अचानक से, और ये देखिए क्या हुआ आप लोग के साथ। तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, और क्योंकि ये बोट इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, वो लहर तेज़ हो गई थी, क्योंकि हम लोग एक नदी से दूसरे नदी की ओर, मतलब एक जो मेन डायरेक्शन है, जो मेन स्ट्रीम है, उससे कट के हम लोग एक रिवर स्ट्रीम में जा रहे थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रही थी बोट, और हम लोग का लंच टाइम में ही हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन एट लास्ट धीरे धीरे वो स्टेबल हो गया और हम लोग थोड़ा जान में जान आया। देख ही सकते हैं आप लोग इस तरीके से बोट चल रही थी। हम लोग खाना खा के नीचे आ गए, क्योंकि ऊपर में टेबल थोड़ा कम पड़ रहा था और नीचे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लोग सोचे थोड़ा आराम कर लिया जाए, और इसलिए हम लोग नीचे आ गए। बारिश भी होने लगी, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था नीचे में बैठ के बातें करने में। आप सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। आप लोग भी जाइए और इन्जॉय कीजिए सुंदरवन ट्रिप। मैं तो एश्योर्ड हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर में इलिस उत्सव में। और इस तरह के हम लोग को जो जहाज़ है, जो ढाका से बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, फिर इंडिया से बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं, वो इस तरह के जहाज़ में सामान लेके जाते हैं। अभी अनलोडेड है इसलिए थोड़ा ऊपर है, और हम लोग एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोडेड जहाज़ रहेगा, जिसमें देखिएगा आप ये एकदम नीचे चला जाएगा। तो काफ़ी सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के हम लोग को जहाज़ दिख रहे थे, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए पाखिरालय। हम लोग का जो नेक्स्ट डे नाइट स्टे था वो पाखिरालय में होने वाला था। तो फिर से हम लोग पाखिरालय पहुंच चुके थे, और उसके बाद हम लोग नाइट स्टे करते। तो आज नाइट का जो मेनू था, जो चिकन चिली और साथ में फ्राइड राइस और साथ में आलू दम, तो हम लोग वो खाना खाएं। थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा हम लोग बिज़ी थे शॉपिंग करने में, ये सब करने में, तो इसलिए थोड़ा बिजी थे। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डे हुआ, और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए अपने जो फाइनल स्पॉट है, जहाँ पे हम लोग उतारा गया था, जो हम लोग चढ़े थे वहीं पर। तो उसी स्पॉट पे हम लोग जाते हैं, और वहाँ से हम लोग फिर कैनिंग चले जाते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले, और ये देखिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उस दिन और वेदर अच्छा हो गया था। ये देखिए, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये लोडेड देखिए शिप है, जहाज है, और लोडेड शिप कितना नीचे चला गया था। वही शिप जो अनलोडेड था वो ऊपर था। तो हम लोग को जैसे ही चढ़े, हम लोग को दिया गया अंडा, जो बॉयल्ड एग है वो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग का नाश्ता आ गया, और नाश्ते में हम लोग का था कचौड़ी और आलू दम। टेस्टी टेस्टी था। पूरा अच्छी खाना खाते हुए, टेस्टी टेस्टी। देखिए क्या है ये, क्या बेटे ना, लूची आलू दम। तो सारा ही खाना बहुत ही अच्छा था। हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हैवी खाना खाए हैं, और हमेशा हम लोग का डाइजेस्ट हो जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। हम लोग को डाउटफुल था जब हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग थोड़ा डाउट में थे कि इतना ज़्यादा खाना खाएंगे कहीं पेट ना ख़राब हो जाए, बट ये ऐसा नहीं हुआ। हम लोग ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने हाइजीन मेंटेन किया था।
और काफ़ी अच्छा खाना टेस्टी था। तो कभी भी हम लोग को हैवी फील नहीं हुआ खाना खा के। हम लोग पहुंच गए थे नेक्स्ट स्पॉट में, और वो स्पॉट था लोकनाथ टेम्पल। तो ये काफ़ी अच्छा स्पॉट लगा हम लोग को। मतलब थोड़ी लंबी धूप काफ़ी ज़्यादा थी, थोड़ी गर्मी लग रही थी, बट ये स्पॉट में हम लोगों ने देखा कि लोकल्स जो है अपने घर से जो भी सामान है, जो भी सामान उन लोगों के पास होता है, वो लेके आ रहे थे और बेच रहे थे। और थोड़ी सी गरीबी मुझे लगी, स्पेशली पर्सनली लगी, क्योंकि सुंदरवन में देखा कि लोग वहाँ पे वो छोटा चीज़, कोई भी छोटा चीज़ उनका घर में हुआ है, कोई खीरा, कोई कुछ आमड़ा, इस तरह का बहुत सारा चीज़, छोटा चीज़ लेके आ रहे थे और बेच रहे थे टूरिस्ट को। तो ये थोड़ा ये लगा कि जो अपना घर का चीज़ इतना कम भी हो रहा है वो भी बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस है पैसे की कमी तो होगी ही इस तरह के जगह में। तो ये थोड़ा फील हुआ मुझे, बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट ये फील हुआ। उसके बाद हम लोग लोकनाथ टेम्पल पहुँचे, जो अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने प्रणाम किया, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए बोट में। और इस तरह के बोट्स में देखिए पूरा जो ज़मीन है वो टूट रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी, और कितना रिस्क लेके चढ़ रहे थे। तो ये रिस्क हमेशा बोट से चढ़ते उतरते वक्त रहता ही है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आप गिर न जाएं। और ये पेड़ देखिए कितना जड़ जो है, इस तरह के मैंग्रोव्स में पता चलता है कि जड़ें कितनी मजबूत होती है, फैली हुई होती है, और अंदर में उसके ये नहीं है, मिट्टी नहीं है, बट वो फिर भी स्टेबल है और सीधी खड़ी हुई है। और ये हम लोग का कैप्टन जैक स्पैरो, जिसको हम लोग ने लास्ट में वीडियो में कैप्चर किया, सब कोई उसके साथ फ़ोटो खींच रहे थे, क्योंकि 3 दिन इन्होंने ही ड्राइव किया था। हम लोग का लंच आ चुका था, और लंच में था इलिश बिरयानी। तो इलिश बिरयानी आप लोग देख सकते हैं, आलू दिया था उन्होंने, और इलिश भाजा अलग से दिया था, और साथ में बिरयानी दिया था, जो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। खाना उतना हैवी नहीं था, तेल नहीं था। না হলে হবে এটাই আসল একটা নুন দেবে দাদা। ইলিশ বিরিয়ানির এটাই তো ইলিশ উৎস। এটা কিন্তু সব জায়গায় এমনি করে করবে না। একটু আলু, একটু ভাত, একটু আলু, এই শসা এসছে, একটু শসা, শসা, একটু বেশি পেঁয়াজ, একটু আলু, একটু মাছ, একটু শসা, পেঁয়াজ। एट लास्ट आया चिकन मसाला, जो काफ़ी टेस्टी था। इलिश बिरयानी के साथ कॉम्बिनेशन एकदम सही बैठ रहा था। हम लोग का ये लंच करके काफ़ी अच्छा लगा, और सारा ही खाना अच्छा था। आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं इस ट्रिप में आके। एट लास्ट हम लोग को ड्रॉप किया गया अपने पिकअप लोकेशन में, जो था सोनाखाली। और इसी के साथ हम लोग का जर्नी यहाँ से ख़त्म होता है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग कैनिंग पहुँच गए, और वहाँ से फिर घर। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।